अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नाइन्थ मैथमेटिक्स में जो चीज़ हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट्स एक्सरसाइज 6.2। वी आर गिवन क्वेश्चन नंबर 1 in which two lines AB and CD are intersected by a transversal. Now in this question we have to find the value of this x angle and the value of this y angle, this x angle and this y angle. So how we are going to do it? Given में लिखेंगे हम given lines AB and CD are intersected by transversal such that AB और CD को इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल कर रहा है। उसके बाद में हम क्या कहेंगे? such that x प्लस ये 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप फिगर की ओर देखेंगे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दैट्स लीनियर पेयर। हाँ, लीनियर पेयर, ठीक है। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर हैं तो इनका सम 180 डिग्री आएगा, विच इम्प्लाइज हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट मीन्स 130 डिग्री। तो हमारा जो ये x वाला एंगल है वो कितना निकला? 130 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आवर एंगल y। हमको अब एंगल y निकालना है, विच इम्प्लाइज एंगल y will be equivalent to 130 डिग्री। क्यों? एंगल y भी हमारा 130 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमारा y एंगल भी आ गया कितना? 130 डिग्री। Now, our angle x and y both are same. Angle x is equivalent to angle y. Both are equivalent to 130 degree. ठीक है, दोनों 130 डिग्री हैं। That means they are alternative angles. ठीक है, alternative angles कौन से angles होते हैं? When the interior angle is equivalent to the exterior angle. This interior angle x is equivalent to the exterior angle y. They are known as alternative angles. Here in the question tells us that you have to show that this line AB and CD is parallel. We'll write down AB is parallel to CD. क्यों? Because converse of alternative angles action, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी तभी होगा, हमने यहाँ पर थ्योरम इस चैप्टर में आती है ए बी पैरेलल सी डी। जब ये लाइन ए बी सी डी को पैरेलल होगी तो फिर यहां पर जो अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे दैट विल बी इक्वल। When AB is parallel to CD and there is a transversal which intersects both the two lines, then the alternative angles will be equal. Here we have shown that alternative angles are equal. When alternative angles are equal, then we can say that the line AB is parallel to CD because this is the converse of alternative action. We will write down in this question that angle y plus z is equivalent to 180 degree because interior angles on the same side of transversal, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल z कितना होगा?
180 डिग्री, विच इम्प्लाइज अगर हम ध्यान देंगे y का वैल्यू क्या है 3a प्लस z का वैल्यू क्या है 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज 7 और 3 10 हुए 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज a का वैल्यू क्या निकलेगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 10 दैट विल बी इक्वल टू 18 डिग्री। सो अगर a का वैल्यू 18 आया therefore y will be equivalent to 3 into 18, 3 हो गया 24 to आया कैरी 3 हुआ 54 and the angle Z will be equivalent to 7 into 18, 7 8 are 56, 5 carry आया 7 is 7 plus 5 that will be equivalent to 12. That means our angle Z is equivalent to 126 degree. Therefore, अगर हमारा एंगल Z आया 126 डिग्री एंड Y एंगल आया 54 डिग्री, therefore अब हम दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Either we have to choose angle X plus angle y that will be equivalent to 180 because when two lines are parallel and there is a transversal and their interior angles are supplementary. One more thing which we can use, that is angle x will be equivalent to angle z because when line AB is parallel to CD, जब AB CD को parallel है और CD EF को parallel है, that means AB is also parallel to EF, that means this angle x will be equivalent to angle z, that means alternative angles। हम वही लिखेंगे इसमें angle x will be equivalent to angle z, यहाँ पर because लिखेंगे दोनों किसके बराबर है 126 डिग्री and because alternative angles, ठीक है। जैसे तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इन विच AB इज पैरेलल CD, AB लाइन पैरेलल है CD को एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD, EF एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर CD के ऊपर, और वी हैव ए गिवन एंगल हमारे पास में गिवन है एंगल GED, ये वाला पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल AGE और क्या निकालना है हमको एंगल GEF, ये वाला छोटा वाला एंगल, ठीक है। एक तो हमने ये वाला एंगल निकाला है, इसको मैं एंगल 1 नाम रखूंगा, ये छोटा वाला एंगल निकाला है, इसको मैं एंगल 2 नाम रखूंगा एंड एंगल FGE और ये वाला एंगल निकालना है, इसको मैं एंगल 3 नाम रखूंगा, ठीक है। हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम पहले बताएंगे, पहले हमको निकालना है एंगल AGE, ठीक है। वी कैन राइट डाउन एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, दोनों इक्वल है किसके 126 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिखेंगे क्यों, बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है GE और ये वाला एंगल ये वाले पूरे एंगल के बराबर होगा, क्यों, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अभी दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल GEF, ये वाला छोटा वाला एंगल निकालना है, बट हमको पूरा वाला एंगल मालूम है, वी नो, क्या जानते हैं हम, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, लेकिन ये एंगल GED किसके बराबर है, दो एंगल के बराबर है, एंगल GEF प्लस एंगल GEF, ये वाला छोटा एंगल एंगल 2 और एंगल FED, ये दोनों बराबर है 126 डिग्री, विच इंप्लाइज अगर आप ध्यान देंगे FED ये वाला एंगल वही से दिया गया है, डेट इज 90 डिग्री, वो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, एंगल GEF
plus 90 degree is equivalent to 126 degree, which implies angle GEF हमारा किसके बराबर निकलेगा? 126 डिग्री माइनस हो जाएगा 90, that will be equivalent to 6 में से 0 तो 6 ही, तो यहाँ 12 में से 9 और कितने रहेंगे? 3। That means हमारा जो ये छोटा वाला दूसरा एंगल है वो कितना निकला? 36 डिग्री। Now there is last one, angle FGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये दोनों एंगल कितने होंगे? 180 डिग्री। क्यों? ये वाला एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन पर है, डेट मीन्स दे आर लीनियर पेयर। ठीक है, दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, डेट मीन्स हमारे पास में एंगल AGE ऑलरेडी गिवन है, एंगल दैट्स इक्विवेलेंट टू 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE is equivalent to 180 degree, which implies angle FGE is equivalent to 180 degree minus 126 degree, that will be equivalent to, तो 0 है, 1 मिलेगा, 10 में से 6 4 आएंगे, यहाँ बचते हैं 7, 7 में से 2 5, 1 में से 1 तो कुछ भी नहीं। ठीक है, that means our angle FGE will be equivalent to 54 degree। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। Thanks and have a nice day।